السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زوینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں بلڈی ویمپائر سیزن 2 پارٹ 3۔ یہ آنکھیں کیوں نہیں کھول رہی؟ حمیز نے بے حد نرمی سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ زرد لگ رہا تھا۔ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ تھوڑی دیر پہلے پورے فنکشن میں سب سے خوبصورت لگتی ملکہ اس وقت زرد رنگ میں زندگی اور موت کے ساتھ جھول رہی ہے۔ شہزادے، ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے اٹھنے کے امکان کم ہے۔ اگر انہیں ہوش آیا بھی تو صبح تک آئے گا۔ ڈیلس حمیز کو دیکھ کر بولا۔ پورے محل میں مشہور تھا کہ حمیز ملکہ سے نفرت کرتا تھا، مگر اب اسے ایسے دیکھ کر ڈیلس کو محل کی افواہیں جھوٹی لگنے لگی تھی۔ اگر صبح تک اسے ہوش نہ آیا تو پھر دیکھنا میں تمہارا کیا حال کرتا ہوں۔ اب یہاں سے جاؤ اور سب کو کہنا کہ میں نے کہا ہے کہ ابھی کوئی میرے کمرے میں نہ آئے اور ایک ملازمہ کو کمرے میں بھیجو۔ حمیز ڈیلس سے بولا۔ ڈیلس اس کے حکم سنتا منہ بناتا ہوا باہر نکلا اور ایک ملازمہ کو اندر بھیج کر کنگ کے پاس چلا گیا۔ ڈیلس جانتا تھا کہ ملکہ کے بارے میں کنگ بھی جاننا چاہتے ہوں گے۔ حمیز کے کہنے پر ملازمہ نے ملکہ کے کپڑے چینج کر دیے تھے۔ اب حمیز اپنی پوشاک بدل کر ملکہ کے پاس آیا اور اس کے ساتھ لیٹ کر اس نے ملکہ کو زور سے خود میں بھینچ لیا۔ اس کے دل سے بے ساختہ یہ خواہش نکلی تھی کہ صبح اس کے ہوش میں آنے سے پہلے ملکہ ہوش میں آ جائے۔ اس کے بالوں میں ہاتھ چلاتے ہوئے مختلف سوچوں میں گھرا ہوا اپنے اور ملکہ کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ یہ یقیناً اس نے ہی کیا ہوگا۔ میں نے اسے منع بھی کیا تھا کہ ملکہ کے خون میں ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، اور اب اس کے خون میں زہر کی ملاوٹ ہو گئی ہوگی۔ ایلن چیخی تھی۔ اسے ملکہ کی ضرورت تھی، اسی وجہ سے وہ ملکہ کو وہاں سے نکالنا چاہ رہی تھی۔ ایلن کو محل کی ایک ملازمہ سے خبر ملی تھی کہ ملیسا کے کسی زہریلی کے کاٹنے سے سارے جسم میں زہر پھیل گیا تھا، وہ جسے ملکہ کا نیچرل بنا ملاوٹ کا خون درکار تھا۔ یہ بات سن کر اسے شدید غصہ آنے لگا تھا۔ ایلن، کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو؟ رات کو اتنا شور کیوں کر رہی ہو؟ ولیم، جو کچھ دیر پہلے ہی سویا تھا، ایلن کے کمرے سے اونچی آوازیں سن کر اٹھا تھا۔ تم اپنی اوقات بھول گئے ہو؟ ول، میرے کمرے سے فوراً دفع ہو جاؤ، اور آئندہ کے بعد میرے کمرے میں بنا نوک کیے تم آئے تو تمہارا سارا خون نچوڑ کر پی جاؤں گی۔ وہ ولیم کو دیکھ کر غصے سے دہاڑی۔ ولیم اس کا غصہ دیکھ کر تیزی سے اس کے کمرے سے نکل کر اپنے کمرے میں بھاگا تھا۔ بے وقوف انسان، وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی اور اپنے سامنے پڑا خون کا گلاس اٹھا کر اس نے اپنے ہونٹوں سے لگایا۔ یقیناً انہوں نے اس کا زہر نکال دیا ہوگا۔ اب اس کا خون دوبارہ بنا ملاوٹ کے صاف ہو گیا ہوگا۔ اب مجھے جلدی سے ملکہ کو وہاں سے نکالنا ہوگا، وہ دل ہی دل میں سوچنے لگی۔ حمیز اٹھو، تم نے وعدہ کیا تھا کہ آج تم مجھے محل سے باہر لے کر جاؤ گے۔ حمیز جو تھوڑی دیر پہلے ہی سویا تھا، ملکہ کے بچپنے سے بھرپور آواز سن کر اس نے مسکرا کر اپنی آنکھیں کھولی، مگر اسے بچپن کی طرح منہ بسور کر اپنی طرف معصومیت سے دیکھتے پا کر اس کو کچھ کھٹکا ہوا۔ یہ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ اس نے کب اس سے وعدہ کیا تھا؟ شکریہ، تم ٹھیک ہو ملکہ؟ وہ اس کی باتوں کو نظر انداز کر کے بے ساختہ بولا تھا۔ کیا مطلب ہے حمیز؟ مجھے کیا ہونا تھا؟ بلکہ مجھے تو ساری رات خواب میں بھی یہی دکھائی دے رہا تھا کہ تم آج مجھے محل سے باہر لے کر جاؤ گے۔ اس نے اپنے گال پر ہاتھ لگاتے ہوئے معصومیت سے کہا۔ تو تمہاری عمر کیا ہے ملکہ؟ اس نے کسی خدشے کے تحت پوچھا۔ میں ابھی پورے 14 سال کی ہوں حمیز، اور تم اپنی واحد دوست کی عمر بھی بھول گئے؟ وہ منہ پھلا کر بولتی حمیز کی ہوش اڑا گئی تھی۔ حمیز تیزی سے بیڈ سے اٹھا تھا اور باہر کھڑے ملازم سے ڈیلس کو بلانے کو بھیج دیا۔ کیا ہوا حمیز، تم مجھ سے ناراض ہو؟ وہ اٹھ کر اس کے پاس آ کر معصومیت سے پوچھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں پانی بھرنے لگ پڑا تھا۔ میں بھلا اپنی دوست سے ناراض ہو سکتا ہوں؟ اس کی آنکھوں میں پانی دیکھ کر حمیز کا دل دکھا۔ تبھی وہ تیزی سے بولا۔ پھر مجھ سے تم بات کیوں نہیں کر رہے؟ اپنی آنکھوں کو جھپکاتی ہوئی پوچھنے لگی۔ تمہاری رات کو طبیعت خراب ہو گئی تھی، اسی وجہ سے میں اب ڈاکٹر کو بلا رہا ہوں کہ ایک بار وہ تمہارا چیک اپ کر لے، پھر ہم باہر چلتے ہیں۔ حمیز اس کو اپنے حصار میں لیتا ہوا بولا۔ مجھے بھوک لگی ہے، پہلے ہم کھانا کھائیں گے، وہ بھی سب کے ساتھ۔ اس نے حمیز کے سینے پہ سر رکھے اپنی معصوم خواہش ظاہر کی۔ جیسا میری دوست کہے ہم ویسا ہی کریں گے۔ وہ اسے زور سے خود میں بھینچ کر اس کا سر چوم کر بولا۔ ڈیلس کے دروازہ نوک کرنے پر نرمی سے حمیز نے ملکہ کو خود سے دور کیا تھا۔ ڈیلس
सोए जागे हुलिये में अपना बैग पकड़े उसके सामने खड़ा था। डेलिस 14 साला मलिका का ज़रा मुआयना करके मुझे बताना। वो दांत कचकचाता गुस्से से डेलिस को घूरता बोला, जो बेचारा अपना थूक निगलता उसकी बात पर परेशान हो गया था। हमीज, वो चीखी। हाँ? हमीज ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। लड़कियों की उम्र किसी को नहीं बतानी चाहिए। तुम मेरे दोस्त थे इसलिए मैंने तुम्हें बताया था। और सरगोशी में मुंह फुलाकर बोली, अब किसी को नहीं बताऊंगा। अब डेलिस को अपना मुआयना करने दो। वो नरमी से उसका सर चूमकर उसे बेड पर बिठाता हुआ बोला। मलिका ने डेलिस को घूर कर देखा और बेड पर पुरसुकून सी बैठ गई। डेलिस ने आगे बढ़कर उससे मुख्तलिफ सवाल पूछना शुरू किए। शहजादे, मुझे लगता है कि वो अपनी ज़िंदगी के मखसूस 10 साल भूल गई है और उसे ज़बरदस्ती याद दिलाना काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकता है। डेलिस हमीज़ को साइड पर ले जाता हुआ धीमी आवाज़ में मिनमिनाया। हमीज़ ने उसे खूंखार नज़रों से घूरा। मेरी नज़रों के सामने से गायब हो जाओ डेलिस, इससे पहले कि मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूँ। हमीज़ गुस्से की शिद्दत से सुर्ख चेहरे के साथ बोला। डेलिस उसकी बात सुनकर बिजली की तेज़ी से कमरे से निकलकर भागा था। हमीज़, क्या कह रहा था वो? मलिका ने बेड से उठकर उसके पास आते हुए पूछा। कुछ नहीं कह रहा था वो थोड़ा सख्त लहजे में बोला। तुम बहुत गंदे हो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। मलिका आंखों में आंसू लिए खफासी बोली। उसकी बात पर हमीज़ ने झटके से उसकी तरफ देखा। वो कैसे भूल गया कि छोटी मलिका तो उसके ज़रा से सख्त लहजे पर भी डर जाती थी। मुझे डेलिस पर गुस्सा आ गया था मलिका। वो कह रहा था कि अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और तुम्हें बाहर नहीं लेकर जा सकते। हमीज़ ने झूठ उसे कहा। तो इस पर तुमने मुझ पर गुस्सा क्यों किया? एक तो मुझे इतनी भूख लगी हुई है, मगर तुम्हें अपनी दोस्त की कोई फिक्र ही नहीं है। बस डांट डांट कर मेरा पेट भर देना तुम। वो सीसी करती मुंह फुलाकर बोली। अच्छा जाओ, शाबाश, अलमारी से अपने कपड़े लेकर फ्रेश हो आओ, फिर बाहर चलते हैं। हमीज़ उसके गाल को हल्का सा छूकर बोला। मलिका उसकी बात मानती हुई तेज़ी से अलमारी से अपने कपड़े निकालकर फ्रेश होने चली गई थी, जबकि हमीज़ अब इस सूरत हाल पर परेशान सा हो गया था। एलिज़ाबेथ, क्या तुम मलिका से मिलकर आई हो? वो लोग खाने की मेज़ पर बैठे हुए थे जब किंग ने पूछा। नहीं, अभी तक मैं नहीं गई, अब जाऊंगी उससे मिलने। क्वीन खून का ग्लास मुंह को लगाते हुए बोली। ईशा, जो उनके साथ बैठी खाना खा रही थी, उसने नफरत से मलिका के बारे में सोचा। उनकी बातें सुनकर उसे कोफ्त महसूस हो रही थी। क्वीन खुशी से भरपूर चहचहाती आवाज़ में मलिका भागकर एलिज़ाबेथ के गले से लगी। सब इस अचानक इफ्तार पर हैरान रह गए थे। आपने आज पूछा नहीं कि मेरी डॉल कैसी है? उसने मासूम मुंह बनाकर क्वीन से कहा। क्वीन उसकी बात पर हैरान रह गई थी, क्योंकि वो उसे बहुत सालों पहले ऐसे पूछती थी, कैसी है मेरी डॉल? हमीज़ के आंखों से इशारा करने पर क्वीन ने उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए पूछा। मैं बीमार हूँ क्वीन, डेलिस ने हमीज़ से कहा है, अब मैं बाहर भी नहीं जा सकती। वो क्वीन के साथ वाली कुर्सी पर बैठकर उदासी से बोली। जब तुम ठीक हो जाओगी फिर हमीज़ तुम्हें बाहर ले जाएगा। आप कैसे हैं किंग? उसने धीमी आवाज़ में किंग से पूछा। वो हमेशा से उनसे ऐसे ही बात करती थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, किंग ने हल्के फुल्के लहजे में जवाब दिया। उन्हें कुछ सूरत हाल का अंदाज़ा हो गया था। ईशा ने नागवार नज़रों से मलिका को किंग और क्वीन से बात करते देखा था। वो गुस्से से कुर्सी से उठकर चली गई थी। किसी ने उसका जाना महसूस नहीं किया था। मलिका पटर पटर क्वीन और किंग से बातें करने लगी थी। उसे देखकर हमीज़ के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। कितने खूबसूरत दिन थे वो, जब पूरे महल में मलिका चहचहाती फिरती थी। ईशा गुस्से से पैर पटक कर अपने कमरे में आई। उसे हमीज़ पर शदीद गुस्सा आ रहा था, जो भूल गया था कि उस लड़की ने उसकी मंगेतर को मारा था। एक गुस्से का लावा था जो उसके अंदर पनप रहा था, मगर वो फिर भी लब भींच कर कमरे में चक्कर लगाती रही। अभी उसका थोड़ा गुस्सा ठंडा ही हुआ था जब उसे अपने कमरे की दाईं जानिब मौजूद सरकती हुई महसूस हुई। वो एक खुफिया रास्ता था जहाँ से महल में दाखिल हुआ जा सकता था। एलन गुस्से से भरी वहाँ से बाहर निकली और उसने तेज़ी से ईशा की गर्दन को दबोचकर उसे सामने वाली दीवार से लगाया। ईशा ने ज़ोर से दीवार में बजने पर तकलीफ से अपने लब भींचे। एलन, पागल हो गई हो, छोड़ो मुझे। वो अपनी गर्दन पर उसकी गिरफ्त मजबूत से मजबूत तर होती महसूस करके वह मुश्किल बोली। तुम 2 टक्के की लड़की, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मलिका को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करो। ये कैसे भूल गई तुम कि मैंने तुम्हें यहाँ पहुंचाया है और तुम मुझे ही धोखा देने की कोशिश कर रही हो? मैंने तुम्हें बताया भी था कि मलिका का खून मुझे चाहिए, मगर नहीं, तुमने अपनी मर्जी की और उसके खून में जहर की मिलावट कर दी। क्यों किया तुमने ऐसा?
जल्दी से बताओ, वरना तुम्हारी गर्दन मरोड़ने में मुझे ज़रा वक्त नहीं लगेगा। एलन गुस्से से उसकी गर्दन पर गिरफ्त मजबूत करते हुए फनकारी थी। मैंने कुछ नहीं किया एलन। वो एलन को खुद से दूर हटाने की नाकाम सी कोशिश करते हुए बोली। फिर किसने किया, बताओ मुझे। मैंने एक मुलाजिमा से सुना था कि हॉल की सजावट करते हुए उसे किसी कीड़े ने काटा था। ईशा अपने होठों को तर करती बमुश्किल सांस लेते बोल रही थी। अगर तुमने मुझसे झूठ बोला और मुझे पता चला कि तुमने ये किया है, तो याद रखना, तुम्हारी गर्दन मरोड़ने में मुझे कोई दुख नहीं होगा। एलन उसका गला जोर से दबाकर उसे जोर से एक बार फिर दीवार में मारती हुई चली गई। ईशा जमीन पर गिरी अपने गले को पकड़े खांसते हुए अपना सांस बहाल करने की कोशिश करने लगी थी। मुझे समझ नहीं आ रही हमीज, तुम इतने खूबसूरत और बड़े कब से हो गए, जबकि मैं तो अभी भी बच्ची ही हूँ। मलिका मासूमी से मुंह बनाए उससे पूछने लगी। तुम्हें शायद भूल गया है मलिका, मैं शुरू से ही इतना ही खूबसूरत और बड़ा था। हमीज उसकी बात पर संजीदगी से बोला। मलिका सुबह से ही उसके साथ चिपकी हुई थी। अब भी वो उसके साथ ज़बरदस्ती महल में घूम रही थी, क्योंकि बकौल मलिका कमरे में रहने से वो ज़्यादा बीमार हो गई। और फिर आखिर हमीज मलिका की ज़िद को देखते हुए उसकी बात को मान ही गया। हाँ, तुम सही कह रहे हो, ये छोड़ो हमीज, तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे लाइब्रेरी लेकर जाओगे, वो जो बड़ी वाली है। मलिका खुशी से चहकते हुए बोलने लगी, जबकि हमीज हैरान और परेशान था कि कब उसने मलिका से इतना कुछ कहा था। कभी उसे बाहर ले जाने का वादा और लाइब्रेरी ले जाने का वादा। वो महल के बिल्कुल दूसरी तरफ है। मलिका, तुम थक जाओगी उस तरफ जाते हुए। हमीज उसके बाल बिगाड़ता हुआ बोला। नहीं, मुझे जाना है, मुझे लेकर जाओ, वरना मैं क्वीन से तुम्हारी शिकायत लगाऊंगी। वो मुंह फुलाकर अपने बचपने वाले गुस्से से बोली। अच्छा, फिर जब तुम थक जाओगी हम वहाँ से ही वापस आ जाएंगे। हमीज उसका गुस्सा देखकर मुस्कुराहट दबाकर बोला। थैंक यू हमीज, वो खुशी से हमीज के साथ लगती हुई बोली। और हमीज के कुछ समझने से पहले ही वो उससे अलग होकर आगे चलने लगी। हमीज भी उसे देखकर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसके पीछे चलने लगा। हमीज, मीठे शीरी भरे लहजे में मलिका ने रास्ते में रुककर उसे पुकारा। हमीज उसकी बात सुनकर फौरन रुका था। हाँ, क्या हुआ है अब, थक गई हो ना, चलो फिर वापस चलते हैं। हमीज बोलता हुआ उसको लेकर वापसी के लिए मुड़ने लगा, जब मलिका उससे बोली। हमीज प्लीज़, मैंने लाइब्रेरी जाना है, मुझे उठाकर ले जाओ। वो लाड़ से अपनी बाहें उसकी तरफ मासूमियत से फैलाती हुई बोली। उस हमीज का दिल जोरों से धड़का गई थी। हमीज ने पहले उसे घूर कर देखा, मगर फिर मलिका के मासूम मुंह बनाने पर उसने झुककर मलिका को अपनी बाहों में उठा लिया। तुम कितनी तेज हो मलिका, ऐसे तो तुम्हें उठाकर चलते हुए मैं भी थक जाऊंगा। वो मलिका को अपने सीने के साथ सर टिकाता हुआ बोला। मुझे ना तुम इस वक्त बहुत प्यारे लग रहे हो हमीज। वो उसकी बात पर खिलखिलाकर हंसती उसके गाल को अपने लबों से छूकर बोली। उसका लम्स महसूस करके वो एक पल को रुका था, फिर उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट नमूदार हुई थी और वो उसे लेकर दोबारा चल पड़ा। लाइब्रेरी के बाहर पहुंचकर उसने मलिका को उतारा और वो दोनों लाइब्रेरी के अंदर चले गए। वो बेहद खूबसूरत और बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी। उसमें मुख्तलिफ और काफ़ी पुरानी किताबें मौजूद थी। मुझे ये समझ नहीं आ रही हमीज, इतनी किताबों को यहाँ रखने का क्या फ़ायदा जब कोई इनको पढ़ता ही नहीं। मलिका अपनी आंखें बड़ी बड़ी किए लाइब्रेरी को तकने लगी। तुम्हें किसने कहा कि इसे कोई इस्तेमाल करता नहीं, इसे बहुत से लोग इस्तेमाल करते हैं। हमीज ने हल्का सा उसका गाल खींचकर कहा, जिस पर मलिका ने मुस्कुराकर उसे देखा। क्या मैं भी कोई किताब ले सकती हूँ, उसने हमीज से पूछा। हाँ, तुमने जो किताब लेनी है वो ले लो, हमीज मलिका से बोला। मलिका खुश होते हुए तेज़ी से लाइब्रेरी की दूसरी तरफ मौजूद किताबें देखते हुए देखने भागी थी। जब उसे जाते देखकर हमीज हल्का सा मुस्कुराकर अपने लिए कोई किताब देखने लगा। मलिका मुख्तलिफ शेल्फ्स को देखते हुए आगे बढ़ रही थी। जब उसे अपनी मतलूबा जगह मिली और उसने तेज़ी से अपने इर्द गिर्द देखते हुए एक किताब निकाली और उसको देखते हुए उसने उसके सफ़े उलट पलट कर अपना मतलूबा सफ़ा निकाला और उसे तेज़ी से फाड़ कर उसने उसे अपनी पोशाक के अंदर छुपाया और तेज़ी से दूसरी तरफ जाकर वो परियों वाली कहानियों की किताबें देखने लगी। उसने एक किताब उठाकर पकड़ी और अपने चेहरे पर बचकाना मुस्कुराहट सजाए वो तेज़ी से हमीज की तरफ भागी।
हमीज, मुझे किताब मिल गई है, अब चले, मैं जल्दी जल्दी ये किताब पढ़ना चाहती हूँ। वो खुशी से चहकती हमीज के पास पहुंची, जो कोई किताब निकाल कर देख रहा था। उसकी बात सुनकर हमीज ने जल्दी से अपने हाथ में मौजूद किताब शेल्फ पर रखी और उसे अपने साथ लेकर वापस चला गया। मलिका के चेहरे पर एक पुरस्कार सी मुस्कुराहट थी। तुम्हारे लिए एक पैगाम है शहराम, मलिका की तरफ से। डेरिक शहराम के पास बैठता हुआ बोला। क्या पैगाम है? और तुम तो कह रहे थे कि हमीज ने तुम्हें उससे मिलने नहीं दिया और उसकी तबीयत भी बिगड़ गई थी, फिर तुम्हें उसने कब पैगाम दिया? शहराम ने हैरत से उससे पूछा। बस देख लो, तुम्हारे दोस्त के पास भी जादू है, वो मुस्कुराकर बोला। मुझसे ज़्यादा बकवास मत करो डेरिक, जल्दी से बताओ उसने क्या कहा? शहराम उसे घूर कर बोला। कौन बकवास कर रहा है? लाउंज में दाखिल होती मलिसा ने पूछा। बेबी मलिका ने कोई मेरे लिए पैगाम भेजा है, मगर ये मुझे बता नहीं रहा। शहराम ने अपने साथ बैठते हुए मलिसा से कहा। जल्दी से बताओ डेरिक, उसने क्या कहा है? मुझ पर भी उसका इतना बड़ा एहसान है। मलिसा याद करते हुए बोली, जब शहराम उसके लिए मलिका से दवा बनवा कर लाया था, उसने हमारे मखसूस जगह पर अपना खत छुपाया था। उसमें लिखा हुआ था कि वो महल से निकलना चाहती है और तुमने उससे वादा किया था। अब वो तुमसे तुम्हारे वादे के मुताबिक मदद लेकर महल से निकलना चाहती है और मुझे पता चला है कि उसके बाप ने भी किंग को मलिका की रिहाई के लिए खत लिखा है। डेरिक उसे सब कुछ बताता हुआ बोला। कुछ करना पड़ेगा। हम कल ही महल के लिए निकलते हैं। मलिसा बेबी, तुम्हें भी महल देखने का मौका मिल जाएगा। शहराम सोचता हुआ पहले डेरिक से फिर मलिसा को अपने पास करता हुआ बोला। हाँ, ये ठीक है, मैं भी मलिका से मिल लूँगी। मलिसा मुस्कुराकर खुश होते हुए बोली। उसे महल देखने का इतना शौक था, मगर शहराम उसे लेकर ही नहीं जाता था और अब वो उसे लेकर जा रहा था। मलिसा इस बात पर बेहद खुश थी। उसकी खुशी देखकर शहराम भी मुस्कुराया था। 3 दिन बाद हम महल पर हमला करेंगे, तैयारियां शुरू कर दी जाए। एलन अपने साथियों से बोली। वो लोग भी काफ़ी बड़ी तादाद में थे। लेकिन इतनी जल्दी? अभी तो तुम कह रही थी कि 1 महीने तक हम करेंगे। विलियम ने हैरत से उससे पूछा। अपनी बकवास बंद रखो। मैं तुमसे पूछकर या बताकर कोई काम करने की पाबंद नहीं हूँ, इसलिए अपना मुंह बंद ही रखो। वो सबके सामने विलियम की बेइज्जती करती हुई बोली। विलियम ने गुस्से से अपने लब भीजे थे। देखना, एक दिन मैं तुम्हारी ज़बान काटता। विलियम ये सिर्फ सोच ही सका, बोलने की उसमें हिम्मत नहीं थी। वो इतना बुज़दिल था कि अपने किए की सज़ा के लिए भी अपनी बेटी को महल छोड़कर भाग गया था। एलन, हम फिर भी महल के सिपाहियों की तादाद से कम है, उनका एक साथी एलन से बोला। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा टारगेट बादशाह को ख़त्म करना और मलिका को उनके चुंगल से निकालना है। जैसे ही हम बादशाह को ख़त्म करेंगे, उनकी सारी ताकत ख़त्म हो जाएगी। तुम लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। जब तक मैं तुम लोगों के साथ हूँ, तुम लोगों को कुछ नहीं होगा। और वैसे भी हम महल के खुफिया रास्ते से महल के अंदर दाखिल होकर उन पर हमला करेंगे। महल के अंदर वैसे भी कम सिपाही ही होते हैं, ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। एलन अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट सजाकर बोली। वाह एलन, तुम वाकई हमारी लीडर बनने की हकदार हो। मुख्तलिफ लोग एलन की बातों पर उसे दाद देते हुए बोलने लगे, जबकि एलन की मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हो गई थी। मलिका, ये क्या कर रही हो तुम? हमीज, जो थोड़ी देर के लिए मलिका को अकेले कमरे में छोड़ कर गया था, अब वापस आया तो सारा कमरा बिखरा देखकर उसने कुछ हैरानी और परेशानी से पूछा। कुछ नहीं कर रही, मैं वो पोशाक ढूंढ रही हूँ जो तुमने सालगिरह पर मुझे दी थी। आज मेरा वो पहनने को बहुत दिल कर रहा है। वो कपड़े अलमारी से निकालती बाहर फेंकते हुए मसरूफ सी बोली। उफ मलिका, वो फट गया था, मैंने उसे सही होने के लिए दिया है। अब यहाँ सुकून से बैठ जाओ। वो परेशानी से अपने बालों में हाथ फेरता उसके करीब आया और उसे पकड़कर बेड पर बिठाता हुआ बोला। कैसे फटा वो? तुमने मुझे फटी हुई पोशाक दी थी। हमीज, तुम बहुत बुरे हो। वो हमीज की बात का अपना ही मतलब निकालती रोने वाली शक्ल बनाकर बोली। नहीं, तुम गलत समझ रही हो। ऐसा कुछ नहीं है। जैसा तुम समझ रही हो वो तुमने पहना था। तुम उसमें गिर गई थी, जिससे वो फट गया और तुम रोने लग पड़ी थी। तुम्हारे कहने पर ही मैंने उसे सही करवाने के लिए भिजवाया है। हमीज अपनी ही कहानी गढ़ता हुआ बोला। सच बोल रहे हो तुम? मलिका ने मुंह बसोर कर पूछा। हाँ, सच ही बोल रहा हूँ। और अब ये जल्दी से कमरा
समेटने के लिए बाहर से किसी मुलाजिमा को बुलाओ, मैं थक गया हूँ। हमीज़ बोलता हुआ फ्रेश होने चला गया। उसी वक्त ईशा हमीज़ के कमरे में दाखिल हुई। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? मलिका ने मासूमियत से ईशा से पूछा। अपना मुंह बंद रखो, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, तुम नाटक कर रही हो। ईशा नहवत से बोली। हाँ कर रही हूँ, और तुम कुछ नहीं कर सकती, बस देखती जाओ। वो मुस्कुराकर अपनी एक आंख दबाकर धीमे लहजे में बोली, और फिर देखते ही देखते ईशा के कुछ समझने से पहले मलिका ज़मीन पर थी और वो रो रो कर हमीज़ को पुकार रही थी। हमीज़ हमीज़, वो चीखते हुए उसे बुलाती रोने लगी। हमीज़ तेज़ी से मलिका की चीखें सुनकर बाहर निकला और ईशा को खड़े जबकि मलिका को ज़मीन पर देखकर उसे लगा कि मलिका को ईशा ने गिराया है। हमीज़, इसने मुझे ज़ोर से गिराया और मेरे बाल भी खींचे, वो रोते हुए बताने लगी। हमीज़ ने गुस्से से ईशा को देखा जो इस अवतार पर बौखला गई थी। हमीज़ ने गुस्से से आगे बढ़कर ईशा के खींच कर एक थप्पड़ मारा था। चटाक! यहाँ से दफ़ा हो जाओ ईशा, इससे पहले कि मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूँ। हमीज़ की दहाड़ सुनकर वो मुँह पर हाथ रखे तेज़ी से बाहर भागी थी। हमीज़ ने झुककर मलिका को उठाया था और उसका सर चूमकर उसे अपने साथ लगाकर चुप करवाने लगा, जबकि हमीज़ के सीने में मुँह छुपाई बैठी मलिका के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आकर गायब हो गई थी। माजी मारिया और मलिका के दरमियान हमीज़ फंस कर रह गया था। वो किसी एक के साथ ज़्यादा देर रह लेता तो दूसरी नाराज़ हो जाती, और अगर दूसरी के साथ वक्त गुजारता तो पहले वाली नाराज़ हो जाती। मारिया और मलिका की दुश्मनी पूरे महल में मशहूर हो गई थी। दोनों अब एक दूसरे को बुलाती तक न थी। मलिका बेचारी उसे पहले भी कुछ नहीं कहती थी, मगर मारिया ने ही उसके और अपने दरमियान इख्तलाफात की बातें पूरे महल में फैलाई थी। आज मारिया के बाप को एक ऊंचा ओहदा मिलने वाला था, जिससे विलियम बिल्कुल खुश न था। उसने किंग की इतनी खिदमत की थी, मगर उसके बाद ये उसकी बजाय मारिया के बाप को मिलना उसे कुछ हजम नहीं हो रहा था। उसने एक मंसूबा बनाया और मारिया के वालिद को मारने का सोचा। उसने इस सब के लिए एलन, जो कि किंग की सौतेली बहन थी, उससे मदद ली, और उसके बदले उसने अपनी बेटी मलिका का सौदा एलन के साथ किया, क्योंकि मलिका विलियम की अपनी बेटी ही थी, मगर वो उसे पसंद ना करता था। उसे बेटे की तलब थी, इस वजह से उसे मलिका से ज़्यादा सरोकार भी नहीं था। वो मलिका के 18 साल के होने के इंतज़ार में था और उसके बाद उसका खून पीकर अमर हो जाना था। मलिका सबसे ताकतवर जादूगरनी की बेटी थी। सबकी नज़रों में उसे मलिका के बेहद फिक्र थी, मगर अंदर से वो कितना मलिका के खून का प्यासा था कोई नहीं जानता था। वैसे तो वो पहले से ही अमर था, मगर उसके खून पीने के बाद उसे कोई मार नहीं सकता था, और यही वजह थी कि एलन भी मलिका के खून की प्यासी थी। मंसूबे के मुताबिक आज एक रस्म के साथ मारिया के बाप को ओहदा मिलना था, जो किंग और शहजादे के बाद सबसे ज़्यादा ताकतवर था। एलन अपने चंद साथियों के साथ किंग के बुलावे पर महल आई थी। सब तैयारियां पूरी थी। पूरे महल में आज चहल पहल और मामूल के बरखिलाफ काफ़ी रौनक थी। विलियम और एलन ने अपने प्लान के साथ का करना शुरू किया, और एलन के एक साथी ने मारिया के बाप को धोखे से मारिया के नाम पर महल की पिछली साइड पर बुलाया। मारिया का बाप परेशानी से महल की पिछली साइड पर आया, जबकि उन्हें देखते हुए हमीज़ भी महल की पिछली साइड पर गया। हमीज़ अभी उनके करीब जाकर पूछने ही वाला था कि वो क्यों यहाँ आए हैं, जब उसके देखते ही देखते विलियम ने आगे बढ़कर एलन के साथी के साथ मारिया के बाप पर हमला करके उसे एक झटके में ही चाकू मार दिया। उसी वक्त हमीज़ ने तेज़ी से सिपाहियों को बुलाया और खुद अंदर अपने बाप की तरफ भागा। वो जानता था कि एलन ने आज उसके बाप पर हमला करना था। वो सब लोग खड़े हंसते हुए बातें कर रहे थे, जब एलन ने किंग के साथ खड़े खड़े आहिस्ता से अपनी पोशाक के बाजू से एक जहरीला चाकू निकाला और किंग की पीठ में घोंपने लगी। उसी वक्त हमीज़ बिजली की तेज़ी से उसके करीब आया था और उसने झटके से एलन को दूर फेंका था। सब उस अचानक होने वाले वाक़ये पर हैरान रह गए थे, जबकि एलन के हाथ से चाकू दूर जाकर गिरा था। एलन ने तेज़ी से उठकर हमीज़ पर हमला करते हुए दूर फेंका। देखते ही देखते पार्टी में मौजूद एलन के साथी निकलकर उस पर हमला करने लगे। जहां कुछ देर पहले
کچھ دیر پہلے خوشی کا سامان تھا، اب وہاں خون کی ندیاں بہنے لگی تھی۔ حمیز نے اپنی پوشاک سے ایک چھوٹا سا چاقو نکال کر ایلن کی آنکھ میں مارا تھا، جس سے وہ تکلیف سے پاگل ہوتی دور ہٹی تھی اور اس کی آنکھ سے خون نکلنے لگا تھا۔ اپنے باپ کو تو تم نے بچا لیا، مگر افسوس اپنی عزیز دوست کو نہ بچا پاؤ گے۔ ایلن چیختے ہوئے افسوس سے حمیز سے بولی اور اپنے باقی بچے ساتھیوں کو اشارہ کرتے ہوئے وہاں سے تیزی سے بھاگی۔ حمیز اس کی بات سن کر تیزی سے محل کے اندرونی حصے میں بھاگا تھا۔ ملکہ راہداری سے گزر رہی تھی جب ایک شخص نے اسے دبوچا اور اسے اپنے ساتھ کھینچنے لگا۔ ملکہ مسلسل کوشش کرتی اس سے چھوٹنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ اسے گھسیٹتے ہوئے لے جا رہا تھا۔ ماریا جو ہال میں رونما ہونے والی تقریب کی طرف جا رہی تھی، ایک شخص کو ملکہ کو گھسیٹ کر لے جاتے ہوئے وہ تیزی سے اس طرف آئی تھی اور اس نے اس آدمی کو جھٹکے سے ملکہ سے دور کرنے کی کوشش کی، مگر وہ اتنا بھی ہلکا نہ تھا کہ ایک لڑکی کی طاقت سے دور ہٹ پاتا۔ اس شخص نے ملکہ کو جھٹکے سے نیچے پھینکا، جس سے اس کے سر پر چوٹ لگی اور خون بہنے لگا، جبکہ اب وہ شخص ماریا کے ساتھ گتھم گتا ہو رہا تھا۔ ملکہ ڈر کر دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی تھی جب ملکہ کے سامنے اس شخص نے ایک زہر سے بھرا چاقو نکال کر ماریا کے پیٹ میں دھنسا اور قدموں کی آواز سن کر وہ ماریا کو پھینکتے ہوئے بھاگا۔ ملکہ ماریا کے گرتے ہی تیزی سے اس کے پاس آئی اور اس کے پیٹ سے چاقو نکالنا چاہا۔ جب ماریا نے اس کا ہاتھ تکلیف سے پکڑ کر اپنا سر نفی میں ہلایا، وہ خاص زہر تھا جس سے ایک ویمپائر کی موت 2 منٹ میں ہو جاتی تھی۔ حمیز کا خیال رکھنا اب سے وہ تمہارا ہوا، وہ ہلکا سا مسکرا کر بولی، جبکہ ملکہ کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے تھے۔ حمیز جو تیزی سے اس طرف آیا تھا، اس نے ماریا کو بس تکلیف سے آخری سانسیں لیتے دیکھا تھا اور ملکہ کا ہاتھ ماریا کے پیٹ پر دھنسے چاقو پر تھا۔ ماریا! وہ تیزی سے ماریا کے قریب بڑھا اور اس نے جھٹکے سے ملکہ کو ماریا کے وجود سے دور دھکا دیا۔ ماریا! اس نے اس کا چہرہ تھپتھپایا، مگر اس کا جسم برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا پڑ گیا تھا اور اس کے ہونٹ نیلے پڑ چکے تھے، جو اس کے مرنے کی نشانی تھے۔ تم بھی اپنے باپ کی طرح غدار نکلی؟ ارے میں تو تمہیں معصوم سمجھتا تھا، مگر تم تو اتنی چالاک نکلی کہ اپنے باپ کے ساتھ مل کر میری منگیتر کو بھی مار دیا۔ وہ ملکہ کی طرف مڑتا اس کا گلا دبوچ کر بولا، جبکہ ملکہ نفی میں سر ہلاتے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس کے بعد ملکہ سے کوئی صفائی نہیں لی گئی تھی۔ حملے میں کافی لوگ مارے گئے تھے، جس میں ملکہ کی ماں بھی تھی، جبکہ حمیز نے کنگ سے لڑ کر ملکہ کو اپنی غلام بنا لیا تھا۔ اس کا ہر فیصلہ حمیز ہی کرتا تھا۔ اس دوران انہوں نے ولیم کو بھی ڈھونڈ کر کافی بار مارنے کی کوشش کی تھی، مگر ایلن کی مدد سے وہ بچ جاتا۔ پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ ملکہ کو ہی ولیم کی بھی سزا ملے گی اور اسی طرح 10 سال گزر گئے تھے، مگر کوئی دن بھی ملکہ کا پرسکون نہ گزرا تھا۔ جبکہ اس دوران ایلن نے اپنا ایک مہرہ عیشا کو بنا کر محل میں بھیجا تھا۔ عیشا نے خوب پاپڑ بیل کر حمیز کو اپنے آپ سے منگنی پر راضی کیا تھا۔ اب ولیم اس وجہ سے ایلن کے سامنے ملکہ کی فکر ظاہر کرتا تھا تاکہ وہ ایلن سے زیادہ ملکہ کا خون پی کر طاقتور ہو جائے، مگر ایلن بھی اس کے ارادوں کو اچھے سے جانتی تھی، اسی وجہ سے وہ بھی ایک الگ ہی پلان تیار کیے بیٹھی ہوئی تھی۔ اب حال حمیز مجھے کل والی لڑکی سے ڈر لگ رہا ہے، ملکہ معصوم سی شکل بنا کر اپنے پیروں کو دیکھتے ہوئے بولی۔ حمیز ایک کام سے تھوڑی دیر کے لیے باہر جا رہا تھا، جبکہ ملکہ کو وہ اکیلا کمرے میں رہنے کا چھوڑ کر جا رہا تھا۔ کیوں؟ میری دوست تو بہت بہادر لڑکی ہے، اگر پھر کبھی کوئی تمہیں کچھ کہے تو تم بھی اسے اپنے ہاتھوں کا استعمال کرتے ہوئے ڈھیر کر دینا، وہ اس کا سر چوم کر نرمی سے بولا۔ ملکہ نے اس کی بات پر معصوم سا منہ بنایا اور اپنا سر جھٹ سے ہلایا۔ حمیز اس کے بال بکھیرتا ہوا کمرے سے چلا گیا۔ حمیز کے جانے کی تسلی کرتے ہوئے ملکہ نے اٹھ کر دروازہ اچھے سے بند کرتے ہوئے کل جو اس نے لائبریری میں کاغذ پھاڑ کر چھپایا تھا وہ اس نے نکالا اور بیڈ پر بیٹھ کر اس کو پڑھنے لگی۔ اس کو پہلے واقعی سب کچھ بھول گیا تھا، مگر پھر تھوڑی دیر بعد ہی اس کو سب کچھ یاد آ گیا تھا۔ مگر پھر اس نے پلان بنایا اور اب وہ اپنی یادداشت بھولنے کا ناٹک کرتے ہوئے یہاں سے نکلنے کا پلان بنا رہی تھی، اس بات سے بے خبر کہ کوئی اور بھی ہے جو اس کے اس راز سے واقف تھا۔
اس کاغذ میں اس زہریلے کیڑے کے بارے میں لکھا ہوا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے زہر کے اثرات ابھی تک اس کے جسم میں موجود تھے، جسے وہ جلد از جلد ختم کرنا چاہتی تھی، کیونکہ اسے رات کو صحیح سے نیند بھی نہیں آئی تھی اور اسے تھکاوٹ بھی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے کاغذ پر لکھا ہوا اس کیڑے کا علاج لکھا۔ اس میں اس کا واحد حل رائل بلڈ کا تھا کہ اس کا اثر صرف رائل بلڈ ہی ختم کر سکتا تھا، وہ بھی لگاتار 3 دن پینے سے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اسے رائل بلڈ بھی حمیز کا چاہیے، کیونکہ اس میں لکھا تھا کہ جس نے پہلی بار بلڈ پلا دیا ہے اپنا، پھر اس کا ہی رائل بلڈ لگاتار پینا ہے۔ اگر یہ نہ لکھا ہوتا تو وہ یہاں سے نکل کر شہرام کی مدد لے کر اس کا خون بھی پی لیتی، اور سب سے بڑی بات، رات کو بھی اس کی ناک سے خون نکلا تھا جسے وہ حمید سے چھپا گئی تھی۔ مگر آج اس نے سوچا کہ اگر اس کے ساتھ دوبارہ ایسا ہوا تو وہ حمید سے چھپائے گی نہیں۔ دروازے پر کھٹکے کی آواز پر اس نے جھٹکے سے وہ کاغذ تکیے کے نیچے چھپا لیا تھا۔ جبکہ عشاء اندر آئی تھی، ملکہ کو اس کا انداز مشکوک سا لگا۔ اس کی آنکھوں میں وہ چمک صاف دیکھ سکتی تھی۔ اسے دال میں کچھ کالا محسوس ہوا۔ واہ، بڑی اداکاری کرنے آ گئی ہے تمہیں ملکہ، ویسے تمہیں مزہ تو بڑا آیا ہوگا مجھے کل تھپڑ پڑوا کر۔ عشاء اس کی قریب آ کر اس کا چہرہ جکڑ کر پھنکاری۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہے؟ وہ آنکھوں میں خوف لیے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ ملکہ اس کی چالاکی سمجھ رہی تھی۔ جھوٹ مت بولو اور مجھے بتاؤ کہ کیوں یہ سب کر رہی ہو۔ وہ ملکہ کو اکسا رہی تھی۔ حمیز بچاؤ مجھے، ملکہ چیختے ہوئے اس سے دور ہونے کی ناکام سی کوشش کرنے لگی۔ پھر اس نے عشاء کو دیکھتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر ایسے تھپڑ اپنے منہ پر مارا کہ ایسا لگا جیسے عشاء نے مارا ہو۔ ملکہ کی چیخیں سن کر حمیز تیزی سے اندر داخل ہوا، عشاء کے کہنے پر کہ ایک بار وہ اس کے ساتھ آئے اور باہر کھڑا ہو جائے اور اس کو پتہ چل جائے گا کہ ملکہ ناٹک کر رہی ہے۔ مگر اب اندر آ کر ملکہ کا سرخ چہرہ دیکھ کر حمیز کو اپنے پر اور عشاء پر شدید غصہ آیا، جبکہ ملکہ کو بری طرح روتے دیکھ کر عشاء گھبرا گئی تھی۔ حمیز نے جھٹکے سے عشاء کو گلے سے دبوچ کر اس کو زور سے دیوار سے لگایا تھا، جس سے اس کا سر دیوار میں بجنے سے چکرا گیا تھا۔ ملکہ نے حمیز کا دھیان بھٹکا دیکھتے ہوئے وہ کاغذ تکیے کے نیچے سے نکال کر اپنی پوشاک کے اندر پھر سے چھپا لیا تھا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔